Okay, children. So, good morning, all of you. And yesterday I had explained about that is tongue and its function and the different taste buds present in our tongue. Different taste buds present in our tongue. Today I am going to explain about salivary gland and what is its function, what is its role in the process of digestion. What is its role in the process of digestion? Children, yesterday I had explained about 4 types of teeth. I think सबको समझ में आ गया होगा. That is 4 types of teeth. That is 4 types of teeth are incisor, canine, premolar and molar. Incisor, canine, premolar and molar. Incisor teeth and incisors are generally 8 in number. कल मैंने बताया था. Type of the teeth, that is incisors, are 8 in number. Canine, that is 4 in number, and premolar, that is 8 in number, and molar, that is 12 in number. Molar teeth, it is 12 in number, and the last pair of molar teeth means out of 12 जो 4 है वह 4 है. It is called as wisdom teeth. ये कब आता है? 20 years के बाद आपका ये विजडम टीथ निकलता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अकल की दांत. हाँ, ये 20 years के एज में ये आपका विजडम टीथ आता है. ओके चिल्ड्रन, देन कम ऑन अबाउट salivary gland. What is its role in the process of digestion? Digestion में इसका क्या रोल है? Just I am going to explain about its role in digestion. Children, you know there are 3 pairs of salivary gland present in our mouth. They produce a watery like substance. Water की तरह एक substance निकालता है जिसको हम कहते हैं saliva. Then what is its function? Its function is to moist the food. जैसे आपका टीथ का काम है उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना, बट स्लाइवा क्या करता है? फूड को क्या करता है? मॉइस्ट करता है. एंड ऑल्सो हेल्प टू स्वैलो द फूड. और फिर उसको निगलने में, ये जो आपका उसको निगलने में ये आपका स्लाइवा जो है इट हेल्प्स. यंग चिल्ड्रन, समटाइम्स आप देखते होंगे जैसे आपके सामने कोई अच्छी चीजें रखी हुई होती है, जैसे सपोज करो समोसा, कुछ स्वीट्स, या किसी को नॉनवेज देखने के बाद क्या होता है कि आपके माउथ से वाटर लाइक सब्सटेंस निकलता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं देखो ना मुंह में पानी आ रहा है. इसका मतलब वो जानते हो क्या होता है? इट मीन्स saliva is producing from your mouth. आपके माउथ से क्या निकल रहा है? saliva निकल रहा है. एंड दिस saliva secretes or stimulated from our mouth from time to time by seeing some special types of food. Okay, so this is all about your salivary gland. And there is an activity 1. Activity 1 is given as, so you have to count the number of incisor, canine, premolar and molar teeth in your mouth. अपने माउथ में इसको आप काउंट करोगे. अभी आप घर में हो, घर में या तो आप अपने, अगर आपके घर में कोई बड़े भाई बहन हैं तो उससे, या अपनी मम्मा से भी करवा सकते हो. टू काउंट द नंबर ऑफ इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर टीथ प्रेजेंट इन योर माउथ. आपके माउथ में अगर इस प्रकार के टीथ प्रेजेंट हैं तो व्हाट इज इट्स नंबर? अभी इसका नंबर क्या है आप काउंट करके देखोगे. दिस इज योर एक्टिविटी. ओके, देन कम ऑन नेक्स्ट एक्टिविटी 2. एक्टिविटी 2 इज रिलेटेड टू द टंग. मतलब आप टंग निकाल करके देखो विच पार्ट इज हेल्पफुल फॉर द स्वीट.
which part is helpful for salty, which part is helpful for sour, and which part is helpful for bitter in taste. खट्टा, मीठा, तीखा, अपने आपके टंग के किस पार्ट से पता चलता है? आप अभी घर में हो एंड यू विल ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी इन योर होम. आप घर में रह करके इस प्रकार के एक्टिविटी को आप कर सकते हो. ओके, then come on, this is all about our mouth. It means our mouth contains teeth, tongue and saliva. All of these, it means teeth, saliva and tongue help in the process of digestion. And children, then come on about food pipe. After mouth के बाद हमारा खाना किस में जाता है? फूड पाइप का मतलब होता है एक प्रकार का पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि आप क्लास 5 में भी पढ़ चुके हो. फूड पाइप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑसोफेगस. इसको हम ऑसोफेगस भी कहते हैं. और आफ्टर माउथ इट गोज टू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. इट इज मेड अप ऑफ मसल्स. ये किसका बना हुआ होता है? यह मसल्स का बना हुआ होता है. एंड इट गोज थ्रू our muscles, that is called as food pipe. Its length is generally 30 centimeter in length. और इसकी लंबाई जो होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है. And children, and it acts as the passage for the food to slide down from the mouth, and this to a bag-like structure called as stomach. When after food पाइप के बाद हमारा भोजन, हमारा जो फूड है, इट गोज टू स्टमक. तो चिल्ड्रन, दिस फूड पाइप विच इज मेड अप ऑफ मसल्स, कैसे खाना आराम से नीचे की ओर जाता है? हाउ इट विल मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, हाउ इट विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाता है? तो इट गोज टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ contraction of its muscles is responsible for pushing the food down into the stomach. जैसे आप खाना खाते हो तो यह जो आपका फूड पाइप है, तो फूड पाइप में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है? जब जैसे खाना गया तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो कुछ भोजन नीचे चला गया, फिर खाना आया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर कुछ भोजन नीचे चला आया. तो बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फूड स्लोली गोज डाउनवर्ड डायरेक्शन slowly and slowly. So the process of contraction is responsible to push the food in the downward direction. Then after mouth, and second is food pipe, and third is stomach. Then after food pipe our food goes to stomach. यहाँ से हमारा भोजन किस में जाता है? स्टमक में. Okay. Then stomach is a bag like structure. ये स्टमक क्या है? एक प्रकार का बैग की तरह का स्ट्रक्चर है. Okay children, and food is churned and changed into paste like substance. जैसे हम जो भी खाना खाएं तो कुछ तो इसका डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो गया. आवर फूड इज स्टार्टिंग टू डाइजेस्ट इन आवर माउथ. हमारा फूड जो का डाइजेशन जो है वो माउथ में स्टार्ट हो जाता है. ओके, तो देन आफ्टर फूड पाइप देन इट गोज टू स्टमक. जैसे आप देखे होंगे यहाँ पे आटा को पीसा जाता है, चॉप किया जाता है. हाँ, तो इन सेम थिंग हैपनिंग इन केस ऑफ स्टमक. स्टमक में क्या होता है? फूड टर्न्ड एंड चेंज इनटू पेस्ट लाइक सब्सटेंस. यहाँ पे फूड को जैसे होता है कि एकदम बिल्कुल इस प्रकार राउंड एंड राउंड घूमता है, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू अ पेस्ट लाइक सब्सटेंस. जैसे आप टूथपेस्ट करते हो ना, उस प्रकार के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है इन आवर स्टमक. देन चिल्ड्रन, देन हियर from the wall of the stomach, ध्यान से समझो, from the wall of the stomach
a juice is coming, it is called as gastric juice. हाँ, हमारे स्टमक के वाल से एक प्रकार का जूस निकलता है एंड इट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूस. तो गैस्ट्रिक जूस का क्या काम करता है? दिस गैस्ट्रिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड. ये गैस्ट्रिक जूस जो है वह जो हमारा पेस्ट लाइक सब्सटेंस है, और पेस्ट लाइक सब्सटेंस में जो भी प्रोटीन्स है, अब प्रोटीन्स किस किस चीज को खाने से मिलता है आप जानते हो? वी गेट प्रोटीन्स बाय ईटिंग पल्सेस, मिल्क, एनिमल प्रोडक्ट्स. इनसे हम लोगों को क्या होता है? वी गेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स. देन फ्रॉम हेयर चिल्ड्रन, देखिए, देन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज स्टार्टेड फ्रॉम स्टमक. स्टमक से प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है. माउथ से स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन. आवर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हमारे खाने में जो भी चपातीज है, हमारे खाने में राइस है, पोटैटोज है, इट्स डाइजेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम आवर माउथ. जैसे ही खाना हमारे स्टमक में आ गया, दैट इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज स्टार्टेड फ्रॉम आवर स्टमक. एंड फ्रॉम इट्स वॉल a juice like substance is coming and it is called as gastric juices. Then what is its function? अब gastric juice का क्या काम करता है? देखिए, gastric juice help in the digestion of the food. The food generally stayed here 2 to 3 hours and यहाँ पे खाना 2 to 3 घंटे खाना यहाँ पे रहते हैं. कहाँ पे? That is of stomach. स्टमक में हमारा खाना 2 to 3 hours रहता है. एंड जनरली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज स्टार्टेड फ्रॉम स्टमक. इट्स वॉल अ जूस लाइक सब्सटेंस इज कमिंग, इट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूसेस. व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट्स फंक्शन इज टू हेल्प द डाइजेशन ऑफ द फूड, स्पेशली प्रोटीन्स. ओके, अब यहां से खाना कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. यहां से खाना कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? इस प्रकार का कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है. हमारा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है माउथ से, और वह अंत कहाँ होता है? एनस में जाकर के अंत होता है. ओके, तो दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? कितनी स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी लंबाई होती है? और जो लंबाई होती है, इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का डायमीटर कितना होता है? ओके, सो ऑल दीज थिंग्स वी विल रीड इन अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन. देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो सबसे लंबा पार्ट होता है. ओके, एंड इट इज हाईली कॉइल्ड ट्यूब, नियरली 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 7 मीटर इन लेंथ. इसका डायमीटर कितना होता है? 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर मीन्स देखो इतना इसका डायमीटर होता है, 3 सेंटीमीटर. ये इसकी इतनी डायमीटर होती है, इतनी ये मोटी होती है, इतनी डायमीटर. और इसकी लंबाई जनरली 7 मीटर. तो 7 मीटर कितना हो सकता है? सपोज करो आपके क्लासरूम के एक तरफ के वॉल का जो लंबाई है उससे भी ज्यादा. आपके क्लासरूम के एक तरफ की वॉल की जो लंबाई है उससे भी ज्यादा ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई होती है. तो इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, it is the longest part of the digestive system. Then come on. And children, the food get mixed with the bile juice and pancreatic juice in the small intestine. Both these juices help in the digestion. The small intestine absorbs nutrients from the digested food and takes them from all the cells of the body. Through the blood capillaries, the food nutrients that provide energy to all the parts of the body. The food that remains undigested and unabsorbed then enters the large intestine.
Then come on children. In a small intestine, generally the fatty substance, हमारे खाने में जो भी fatty substance है, its digestion is started from a small intestine. हमारे खाने में जितने भी oily substance है, its digestion is started from a small intestine. अब small intestine में क्या क्या चीज ऐसा है कि वो कि हमारा digestion complete हो जाता है. Our digestion is completed where? In a small intestine. अब देखिए, in a small intestine, bile juice is coming from liver. हाँ, आप digestive system का diagram देखोगे. In a digestive system, come on children. In a digestive system, this is liver. आप देख रहे हो, अपनी बुक भी देखो. This is liver. देख रहे हो? And it is pancreas. Okay? और इस liver से bile juice निकलता है. And this bile juice is, from liver, bile juice is coming. Okay? और ये bile juice आकर के कहाँ मिलता है? Small intestine में मिलता है. And pancreas से क्या निकलता है? Pancreatic juice. Pancreatic juice is coming from pancreas. और ये कहाँ आकर के मिलता है? It also comes and collected and meet here in a small intestine. ये भी आकर के small intestine में pancreas से pancreatic juice and liver से bile juice आता है और मिलता है कहाँ पे? In a small intestine. So children, and third type of juice. First, bile juice coming from liver, pancreatic juice coming from pancreas, and from the wall of the small intestine. Small intestine के wall से भी एक प्रकार का जूस निकलता है और वह जूस भी हेल्प करता है डाइजेशन में. मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से भी जूस निकलता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन. पेंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस एंड मैम. हाँ, व्हाट मैम आप जो अभी समझाई ना वो मैम फिर से समझा दीजिए ना. हाँ, व्हाट? पेंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस. यस मैम. Okay, I am explaining. देखिए, when the food is coming from stomach to small intestine, stomach से small intestine में आता है. Small intestine, it is the longest part of the digestive system. यह coil like structure है. इस प्रकार coil like structure हमारे stomach, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इट इज जस्ट लाइक दिस. इस प्रकार से कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है. ओके, एंड इट्स लेंथ इज 7 मीटर. अब 7 मीटर कितना हो सकता है? 1 मीटर इतना होता है. 7 मीटर कितना हो सकता है? आप अंदाजा लगा लो. आप जिस क्लासरूम में पढ़ते हो उसके वॉल की जो लंबाई होती है उससे भी ज्यादा इसकी लेंथ. एंड इट्स डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर. Okay, then in a small intestine, the juice is coming from liver. It is called as bile juice. Bile juice से जो जूस आता है, it is called, liver से जो जूस आता है, it is called as bile juice. And bile juice आकर किसमें मिलता है? That is on small intestine. And from pancreas, pancreatic juice is coming. And it also comes in a small intestine. Then what is their function? Their function is to help in digestion. And here, second and third thing, third juice is coming from the wall of the small intestine. A small intestine के wall से भी juice निकलता है. And these three types of juice help in the complete digestion of the food. यहाँ पे हमारा जो डाइजेशन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है. ओके, देन
स्मॉल इंटेस्टाइन, हियर डाइजेशन इज कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गया हमारा डाइजेशन, हाँ, दैट बट द डाइजेशन ऑफ फैट इज स्टार्टेड, डाइजेशन ऑफ फैट इज स्टार्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फैट का डाइजेशन स्टार्ट होता है, बट डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर। देन चिल्ड्रन फ्रॉम हियर, आप ध्यान दो, फ्रॉम हियर our food is completely converted into liquid like substance, हमारा जो फूड है वो बिल्कुल लिक्विड लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। देन फ्रॉम हेयर स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे क्या लगे हुए रहते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स लगे रहते हैं, हाँ, देयर आर सो मेनी ब्लड वेसल्स आर हियर, ओके, सो ऑल द सेल्स थ्रू द ब्लड कैपिलरी। देखिए अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लगे हुए बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, तो फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू ब्लड वेसल्स, ये जो डाइजेस्टेड फूड जो कि बिल्कुल लिक्विड के फॉर्म में है, ब्लड में आके मिल जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स है तो उसके अंदर ब्लड है, तो ब्लड वेसल्स में आके मिल गया, और फ्रॉम ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड हमारे बॉडी के डिफरेंट भागों में गया, तो वो डाइजेस्टेड फूड जो लिक्विड फॉर्म में था वो भी हमारे बॉडी के डिफरेंट भागों में चला गया। हमारे एक एक सेल को क्या मिला, खाना मिला, हमारे एक एक सेल को न्यूट्रिएंट्स मिला, हमारे एक एक सेल को मिनरल्स मिला। एंड देन अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्टेड नहीं था, अनडाइजेस्टेड था, उसको भेज दिया गया वेयर, इन लार्ज इंटेस्टाइन, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया गया। समझ में आ गया? अनुष्का कुमारी समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Then the lower end of the small intestine extend into wide tube-like structure called as large intestine. Okay, and it is usually 1.5 meter long. इसकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं होती है, 1.5 meter long and 7 centimeter in diameter. देखिए इसकी डायमीटर जनरली 7 सेंटीमीटर होती है और उसकी डायमीटर जनरली 3 सेंटीमीटर थी। ये ज्यादा देखे होगे आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाते हो तो बाहर का जो पोर्शन है दैट इज आप देखोगे आप बहुत उसको चौड़ा बनाते हो। चौड़ा क्यों बनाते हो? बिकॉज इट्स डायमीटर इज मोर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके चिल्ड्रन, देन अनडाइजेस्टेड फूड इज कमिंग वेयर, इन लार्ज इंटेस्टाइन, और अनडाइजेस्टेड फूड में जो भी हमारा वाटर लाइक सब्सटेंस है, हाँ, वह हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भेज दिया जाता है, रेक्टम में जमा होता है, एंड थ्रू इट रिमूव्स फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एनस, और एनस की सहायता से हमारे बॉडी से यह बाहर निकल जाता है। सो anus, the undigested semi-solid product, is eliminated from the body through an external opening called as anus. और ये एनस की सहायता से यह हमारा जो अनडाइजेस्टेड जो बेकार चीजें हमारे बॉडी का, इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स इन आवर बॉडी। आपको समझ में आया या नहीं आया? सालोनी राज समझ में आया? सालोनी राज समझ में आया? नो, अच्छा एक मिनट। शशांक कुमार समझ में आया? अनुष्का समझ में आया? Why you are not responding? हेलो चिल्ड्रन, सालोनी मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? एक मिनट।
अल्फाबेट में अनुष्का वर्ड्स, मेरी आवाज आ रही है? देखो तो आवाज नहीं आ रही। हेलो चिल्ड्रन, सी अनुष्का वर्ड्स, अनुष्का वर्ड्स। यस मैम, आवाज आ रही है? ओके यस मैम। ओके चिल्ड्रन, देन एनी प्रॉब्लम इन digestive system? Any problem in digestive system? नो मैम। Okay, so children, one thing I am again want to explain about the digestive system. देखिए, liver कौन सा सीरियल तुम लोग देख रहे हो? कौन सा सीरियल देख रहे हो? एक मिनट चिल्ड्रन, listen. I am again want to say something about the digestive system. जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, I am again going to explain about the digestive system. Okay. So what is digestive system? So digestive system is the system which help in the digestion of the food. Then what is digestion? Digestion is the process to convert the food materials into fine and soluble form. Fine and soluble form. Okay, this is called as process of digestion. Then in digestion, our digestion is started from our mouth. So from mouth, our digestion is started. In our mouth, what are the substance present in our mouth? In our mouth, teeth, tongue and salivary glands are present. Then come on about teeth. Our teeth, in our mouth, there are two sets of teeth is present. That is milk teeth and permanent teeth. Milk teeth is coming at the age of 1 to 2 years, and permanent teeth, that is complete permanent teeth, after 20 years or near about 20 years. Okay. Yes, ma'am. So there are two sets of teeth, that is primary teeth and permanent teeth. Then second, there are two parts of the teeth. That first part is called as crown, and the lower part which is inside the gum is called as root. And our Ma'am, I have a problem. what's Anushka? Ma'am, where is incisor? What? Where is incisor? Incisor teeth in our mouth. Yes, ma'am. अभी मैं बता रही हूँ फिर से. Okay, so children, in our mouth, that is the crown part of the teeth, two parts of the tooth, and first is called a crown and second is called as root. The white part, it is called as crown, and it is made up of the hardest substance in our body. It is called as enamel, and this teeth is used to grind or to tear the food substances. It helps to tear or grind the food substances which is in which are in big pieces. Then after that children, there are four types of teeth are present in our mouth. That is incisor, canine, premolar and molar. Incisor, it is 4 in number. Incisor, that is 4 in number. Yes, incisors are, no, sorry, incisors are 8 in number, and incisors are canine 4 in number, and premolar 8 in number, and molar teeth, that is 12 in number. और 12 का जो सबसे लास्ट 4 होता है, this it is called as wisdom teeth, और yes, it is called as wisdom teeth, जिसको हम कहते हैं अकल का दांत. और ये कब आता है? आफ्टर 20 years.
आफ्टर 20 years और मे बी इन 20 years ये आपके अकल के दांत आ जाते हैं. Then come on about its what is the function of tongue. This is all about teeth. Ma'am, where is incisor? Incisor ये सामने, canine इधर, premolar इधर, molar लास्ट में. Okay, ma'am. अभी आपके माउथ में सारे टीथ नहीं होंगे, मे बी 28 इन नंबर, 28 या 26 होंगे अभी आपके माउथ में. अभी आपके माउथ में नॉट ऑल द टीथ्स आर प्रेजेंट. ओके, अब आइए. देन आफ्टर दैट द फंक्शन ऑफ टंग. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टंग? इट हेल्प्स टू टेस्ट द फूड, it helps to swallow the food, it helps in speech. Okay, it also helps to mixing the food with saliva. Then after that, come on about the salivary gland. There are 3 pairs of salivary gland is present in our mouth. 3 pairs. Then what is its function? Its function is to moist the food particles and help to, जब कोई भी चीज गीला होता है तो आराम से उसको निगल लेते हैं. Yes, it helps to moisten and swallow the food. And children, the digestion of carbohydrate, it is present in our rice, in our food, in our chapatis. The digestion of carbohydrate is started from our mouth. ये salivary gland क्या करता है? हमारे खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट वाले सब्सटेंस है उसको it helps to digest the things which is present in the form of carbohydrate. Then after that, come on about the food pipe. Then after mouth, then food goes to food pipe. Food pipe में जाता है. Food pipe क्या है? एक प्रकार का मसल्स का बना हुआ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, एंड What is the first? muscles, ये है, it is muscles. Yes, it is muscles. It is called a muscles. Okay, so this is made up of muscular organ. Means it is made up of muscles. ये muscles का बना हुआ organ है. Okay, then children, from here, that is, there is a process in a food pipe. It is called as contraction. So due to contraction of the muscles में क्या होता है? contraction होता है, और contraction के दौरान ये जो हमारा food है slowly goes down. So this is all about food pipe, and it is also called as esophagus. Then our food comes to stomach, and stomach is a very important organs in our body, and our food stays 2 to 3 hours here. It is a bag like structure. Okay, and digestion of protein is started from